I, Abhinav Singh, welcome you all on behalf of the entire CIMP family to this event. Before we start, I take this opportunity to brief our honorable guests of the day about our institute, a brainchild of our Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, who also happens to be the chairman of the Board of Governors of the institute. CIMP was established in 2008 as an autonomous institute on the lines of IIMs with the active support and help from the government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Recently, CIMP has secured position in the top 125 management institutions in the country under the NIRF ranking 2023 conducted by Ministry of Education, Government of India. Now, let me welcome the guests for the day. Shri Devendra Sharma sir, Food and Trade Policy Analyst. Shri Vibhas Kumar sir, retired Executive Director of IOCL and Professor of Practice at CIMP. Shri Brij Mohan sir, Editor News 18. Now, I request Adya to present sapling to Shri Devendra Sharma sir. Now, I request Anushka to present sapling to Shri Vibhas Kumar sir. Now, I request Shishmita to present sapling to Shri Brij Mohan sir. Now, let me introduce our speaker for the day, Shri Devendra Sharma sir. He is a distinguished food and trade policy analyst. He is trained as an agriculture scientist. Dr. Devendra sir is an award-winning Indian journalist, writer, thinker and researcher and well-known respected for his views on food and trade policy. Among numerous awards bestowed on him, he was conferred with the Krishi Yodha Award 2019 by the Bharatiya Chhatra Sansad in collaboration with MIT School of Government, Pune, India. The popular magazine The Week, in its Independence Day special, has listed Shri Devendra Sharma sir among 25 most valuable Indian, calling him Green Chomsky. Now, may I invite Shri Devendra Sharma sir to please deliver his address. Sir, please enlighten us with your knowledge and experience. Now may I invite Professor Dr. Rana sir, Director CIMP, to please come on the lectern for the welcome address. Good morning, all of you. Good morning, sir. Though it's past 12, but I still continue with this. Honorable Shri Devendra Sharma ji, Food and Trade Policy Analyst. Just for your update today, he's with us. Shri Vibhas Kumar ji is Professor of Practice, and we met him earlier when he came as guest on various occasions. Brij Mohan ji, a very popular figure amongst the media fraternity. He's editor of News 18, looking after this zone of Bihar and Jharkhand. My esteemed Kumod Kumar ji and my dear brilliant students, a very warm welcome to this special session by Shri Devendra Sharma ji. It's indeed a privilege to listen to such luminaries, having them physically present around us, and to get the decades of experience in few moments from them as a summary and as a gist. Those who have had the pleasure, privilege, honor and delight to contribute to the policy making and policy development processes of various states of the country. He brings with him vast experience of policy planning and implementation across various states of the country. He hails from Himachal Pradesh, and I have a lot of love and affection with his
state. Recently, Honorable Governor had hosted me for 5 days, and I still hold the cap given by him in high esteem. I only keep it off when I go to sleep. So that's my respect for Himachal, and the warmth and hospitality given by Himachal Pradesh is parallel next to none. I could understand that warmth is exceptionally high because it's a cold region. So that's one, and otherwise also means their hospitality is par excellence, one of the warmest in India and abroad across multiple countries which I have experienced. So congratulations to you, sir, to hail from Himachal and to have made your contributions towards the field of agriculture. I also take this opportunity to welcome our esteemed Vibhash Kumar Sahab, who has recently joined us. So I thank him for being with us and for considering CIMP as a place to spend and invest for further development of CIMP and the state of Bihar and allied regions. And I also take this opportunity to welcome our Mohan ji, who is a media professional par excellence, setting benchmarks of excellence one after the other without letting anyone else know in the media world or other fraternities. So very warm welcome to you, sir. And a warm welcome to Mr. Kumod Kumarji, who works tirelessly day and night. Sometimes I really wish to tell him, please go home, come again tomorrow. So warm welcome to him as well. And I once again welcome all the dignitaries and my brilliant students who are always inclined towards getting additional source of knowledge and experiential learning from the experts. So thank you very much and look forward to learn from your enlightening session. Thanks a lot. Thank you, sir. Your ICFA president is also a good friend of mine. I'll share it. Recording, Anna? Yes. Now may I invite our honorable guest, Shri Devendra Sharma sir, to deliver his address. So please delight us. Respected Mr. Arana, Mr. Kumod Kumarji, Vibhash Kumarji, and my dear friend Braj Mohanji, and young students. You know, जब भी कभी मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स और अक्सर जाने का जब मौका मिलता है तो मुझे ना कुछ होता है एंड आई डोंट मीन टू से शाहरुख खान वाला कुछ मेरे कुछ मतलब है कि दिल करता है कि आई शुड बी अ स्टूडेंट अगेन और वो जो एक लाइफ का सबका एक्सपीरियंस होता है आई एम श्योर हम सबका भी दिल शायद वही करता होगा कि मौका मिले तो आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन करने का समय प्राप्त हो और Do I speak in Hindi or English or Punjabi? What do I do? Whatever. Okay. तो ये मैंने इसलिए आपसे कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब हम आते हैं तो हमें भी सीखने का मौका मिलता ही है और आई थिंक ऑल्सो ऑन द अदर साइड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू कि क्या आज दुनिया में या भारत में या आपके ही पड़ोस में एग्रीकल्चर की या फूड की सिचुएशन कितनी गंभीर है मैं कहूँगा. And when I say it is under severe distress, I think we need to understand certain broader parameters तो उसके हम संदर्भ में पहले देख पाएं आपके साथ. तो मैं ये भी समझता हूँ कि most of the business and management students जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और फूड से बहुत हद तक डिस्कनेक्टेड रहते हैं. तो ये समझते हुए let me at least give a broader picture first and then we come down to the kind of issue जो आज फ्लैग ऑफ किए गए हैं बात करने के लिए. You know, when we look at the national agriculture, आपको ये जानना फर्स्ट पहले बहुत जरूरी है कि भाई roughly 50% of the population of the country is directly indirectly dependent on agriculture, which means कि अगर आज 140 करोड़ की अगर population है भारत में तो तकरीबन आप मानिए कि 70 करोड़ लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं. मैंने से 70 करोड़ इट इंक्लूड्स देयर फैमिलीज. तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि इतना बड़ा चंक जो है एग्रीकल्चर में है और ये जो एग्रीकल्चर में चंक जो है ये इसको हम ये ना सोचें कि भाई वो देश के ऊपर बोझ है. नॉर्मली अगर आप सब अखबार जब पढ़ते हैं या मीडिया में जब देखते हैं तो आपको एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि एग्रीकल्चर इज बैकवर्ड, सब स्टैंडर्ड, इनएफिशिएंट. ये हम समझते हैं एंड वी ऑल नीड टेक्नोलॉजीज टू पुल इट आउट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ए क्राइसिस. एक बात तो ये है.
दूसरा ये है कि इंडिया में अगर हम देखें तो किसान की, आप भी बाय एंड लार्ज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव कम फ्रॉम दोस बैकग्राउंड जो हम सबका है, एक ही कि वी कम फ्रॉम द विलेजेस। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि अगर आप एग्रीकल्चर का जब नेशनल लेवल पे रैंकिंग करें इनकम्स की कि कितना लोग बाकी सब उसमें सर्विसेज से मिलता है या कितना एग्रीकल्चर से मिलता है, तो आपको हैरानगी होगी कि एग्रीकल्चर इज एट द लोएस्ट, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। और ये एक जो सिचुएशन है ये इट इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑन द इनएफिशिएंसी जो हम कहते हैं, इट इज ए रिफ्लेक्शन कि हमने जानबूझकर एग्रीकल्चर को वहां पर क्यों रखा है। इस संदर्भ में जानना जरूरी है क्योंकि एक तरफ एग्रीकल्चर है, मास मैंने कहा जिसमें इन्वॉल्व मासेस इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जो जिस सेक्टर को हम डेवलप करना चाहते हैं, दो सेक्टर की बात अगर हम करें, इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक तरफ है, एक तरफ एग्रीकल्चर है, लेकिन दोनों की जो लिंकेजेस हैं या जो उसके आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड वो भी लिंकेजेस देख लीजिए, पर आई थिंक वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन हम सबके माइंड में दिया जाता है कि जितना हम रेवेन्यू एक सेक्टर से कलेक्ट करते हैं वो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं एग्रीकल्चर के विकास के लिए। इज दैट द राइट वे और इज दैट यू नो एज ए पब्लिक पॉलिसी, या हम लोग सब जो समझें कि वो रास्ता ठीक है कि हम लोग को गलत एक इम्प्रेशन है। पहले तो मैं आपसे बैकग्राउंड जैसे हम कर रहे थे, तो ये इकोनॉमिक जो सोच है दुनिया की, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट कम टू दैट कि भाई क्यों एग्रीकल्चर इज इन ए काइंड ऑफ ए स्टेट ऑफ क्राइसिस हमारे यहाँ भी और कहीं बाहर भी जो देखते हैं। बाहर की बात में करेंगे लेकिन वी विल कम टू दैट कि वो भी लिंकेजेस हम एक बार देख पाए। मुझे याद है 1996, अब तो बहुत साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कितने उस टाइम बॉर्न भी थे। 1996 में आई वाज एट ए कॉन्फ्रेंस एट द एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई। एम.एस. स्वामीनाथन का तो आप नाम जानते हैं जी। तो उनके वहाँ कॉन्फ्रेंस थी और मुझे याद है अभी तक कि वो विविडली आई रिमेंबर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक सज्जन थे डॉक्टर इस्माइल सारगर्दिन। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक बात कही थी, लेट मी शेयर विद यू। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 1996, तो उन्होंने कहा अगले 20 साल में यानी 2015 तक वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन द रूरल एरियाज इन इंडिया एंड विल माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज, उनका नंबर जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगना होगा। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जो जनसंख्या पॉपुलेशन उस समय थी वो 20 करोड़ थी। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन इंडिया बाय द ईयर 2015। ये 20 साल का पीरियड था। मैंने बहुत साल सोचा कि ये हमें शायद वार्निंग दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे देश में होने वाला है, तो आप जो भी एडिक्वेट स्टेप्स लेने हैं या प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी करना है आप करेंगे। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, इट वाज एक्चुअली ए डायरेक्टिव टू अस कि हम एग्रीकल्चर से 40 करोड़ लोगों को निकालकर 2015 तक हम शहर में ले आए। नौ इसका एक मतलब साफ है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सोच है, इट वाज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, कि वो पहले ही डिजाइन कर चुका था कि भाई हिंदुस्तान में इतने लोगों को, एंड 40 करोड़ इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, तो इतने लोगों को निकालकर हमने शहर में लाना है। 2008-2009 में हर साल एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, उसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को अगर आप पढ़े 2008 की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था इन अ लैंग्वेज व्हिच इज एज सिमिलर एज दिस जो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई भारत में जो लोग करना था काम आपको दिया था माइग्रेशन का, वो आप तो अभी पूरा नहीं कर पाए, तो आप उसको प्रोसेस को हेसन करिए। प्रोसेस को हेसन कैसे करिए कि जो जमीन है इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट। उनका कहना था कि वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर के हाथ में है। इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर कौन हुआ? किसान, उनके हाथ में है। तो उनसे निकालकर आप उनको शहर में उसको आप लेके आइए लोगों को, और वो जो है दैट लैंड शुड गो इनटू द प्रोडक्टिव यूज। प्रोडक्टिव यूज क्या हुआ? रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन, ठीक है, ये उनका कहना था। और ये उसने कहा उसको हेसन करने के लिए लैंड रेंटल, लैंड एक्विजिशन, ये सब प्रोसेस करिए। फिर उन्होंने एक चीज और उसमें कही है कि जो यंगर लोग हैं खेती में, उनको तो कुछ और आता नहीं खेती के अलावा, सो आप ये करिए कि उनको शहर में लाके वहां पर एक नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलिए ताकि वो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का कैसे हिस्सा बने, वो उसका उनको उसमें इन्वॉल्व करिए या उसको उसमें फोकस करिए, उनको करिए वहां। तो the point I'm trying to make is कि the modus operandi वो भी उन्होंने स्पेल आउट कर दिया और ये भी बता दिया कि हमें कैसे चलना। और वही आपको अगर याद होगा
2008 के बाद ही हमारे देश में लैंड एक्विजिशन लॉज की बात होनी शुरू हो गई है। ये आपने देखा कि क्या क्या इस देश में प्रदर्शन भी हुआ उसके खिलाफ। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब 2008 में उन्होंने कहा कि आप एक नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए जहाँ के खेती से निकले हुए लोगों को हम इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में इन्वॉल्व करें। 2009 में बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर जो उसमें थे उन्होंने प्रावधान किया 1000 ITIs का सेटअप करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने 2008 में कहा, हमने 2009 में उसको फॉलो किया। एक सिचुएशन तो आपके सामने ये है। दूसरी, आपने कभी गौर करिए, कभी सोचिए कि क्या कारण है कि फूड के प्राइसेस लो होते हैं। क्या कारण है कि भाई हर एक चीज की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप सब्जियों के सीरियल्स के किसी भी चीज के देख लीजिए, दाम वहीं के वहीं रहते हैं। क्या कारण है कि फूड प्राइसेस को नीचे रखा गया? ये इसलिए नहीं कि आप सोचें कि किसानों को पता नहीं है या किसानों की मजबूरी है। ये एक इकोनॉमिक डिजाइन का एक ये हिस्सा है जो हमें जानना है कि फूड को हमें प्राइसेस को लो रखना है। अब आप कहेंगे कि कैसे, कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ अनदर एनेक्डोट जो जिसका मैं बिकॉज आई वाज पार्टली इन्वॉल्वड इन दैट। मुझे याद है, आपने एक शायद नाम सुना होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। सुना है आपने ना? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जब हिंदुस्तान में आया करते थे तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी द एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरे अखबार का मुझे एक स्टैंडिंग वो था, इंस्ट्रक्शन, कि जब भी बोरलॉग हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको उनके साथ रहना है। तो मेरा प्रिविलेज था। आई थिंक इट वाज समथिंग व्हिच इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। लेकिन मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ बात वो ये है कि 1984 में वो भारत आए एंड वी वर एट पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे बैठे थे हम दोनों, तो हमने एक सवाल पूछा उनसे। 1983 में जो जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था उनका नाम था लेक वालेसा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। वालेसा आप जानते हैं। वालेसा साहब बाद में प्रेसिडेंट भी बने पोलैंड के। वो पोलैंड के थे। ही यूज्ड टू बी अ वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट लीडर इन पोलैंड। तो उनका बात चल रही थी कि उनको नोबेल प्राइज मिलना है। तो नोबेल कमेटी ने एक छोटी टीम का गठन किया जो जाएगी वहां पोलैंड में, अध्ययन करेगी कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 1983 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका था। और ये सवाल मैं 1 साल बाद उनसे कर रहा था बोरलॉग साहब से। मैंने उनसे पूछा कि सर, आपको 70s में नोबेल पीस प्राइज मिला था, यू आर एन एल्डरली पर्सन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो आप इसको जो वालेसा साहब को अवार्ड मिला है आप उसको कैसे देखते हैं? आई थिंक इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि आई एम सो हैप्पी देवेंद्र कि आपने मुझे ये सवाल पूछा। मैं भी थोड़ा सरप्राइज था कि मैंने ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड कोई सवाल पूछा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो कमेटी बनाई थी नोबेल प्राइज की, वहां जाके देखने के लिए कि डिजर्व करते हैं नोबेल प्राइज की नहीं, कहते मैं उसका चेयरमैन। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो आके रिपोर्ट दी थी, 4 लोगों की टीम गई थी, मैंने आके रिपोर्ट दी थी कि वालेसा डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज। तो मैंने कहा सर ये क्या हुआ? आपने तो कमेटी ने तो कहा कि नहीं मिलना चाहिए और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो यही समझने की बात है। मैंने कहा कि आपने पहले क्यों बोला कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो आई रियलाइज्ड ही वाज अ वर्कर्स सॉलिडारिटी मूवमेंट लीडर, यानी वर्कर्स का लीडर था। तो ही वाज एक्चुअली फाइटिंग फॉर चीपर फूड फॉर द वर्कर्स। ओके, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं से शुरू होता है ना। आप जानते हैं जब हम इन्फ्लेशन की बात करें, किसी की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी का जब ढांचा देखते हैं तो वहीं से शुरू होता है। तो उनको ये लगा कि वो वालेसा वाज फाइटिंग फॉर चीपर फूड फॉर द वर्कर्स, बट इन द बार्गेन ही वाज फॉरगेटिंग कि व्हाट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस दैट चीप फूड। आफ्टर ऑल वो भी तो लाइवलीहुड है ना। तो उन्होंने कहा कि therefore to him it was clear कि वालेसा was pitting one class against the other. So therefore his recommendation was he does not deserve a Nobel Prize. लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला बिकॉज इंटरनेशनली सोच ये था, जो मैंने शुरू में भी कहा था, कि फूड प्राइसेस हैव टू बी केप्ट लो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सारा ढांचा जो है चीपर फूड के ऊपर खड़ा है। ये हमको सबको जानना है। हम सोचते हैं कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। नो, इट इज एग्रीकल्चर विच इज सब्सिडाइजिंग द इकोनॉमी। और वो जिस दिन हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत से जो विस्टास है वो खुल जाते हैं एंड वी ट्राई टू रीलुक एट एग्रीकल्चर एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उसमें क्या हुआ, जब ये बोरलॉग की आपसे मैंने 2 सिचुएशन बताई, एक तो बोरलॉग वाली और एक मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक वाली जो है। तो दोनों को अगर आप जोड़ लो तो आज जो दुनिया भर में क्राइसिस है, आपको उसका कारण जो है वो आपको स्पष्ट मिल जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात ये देखें कि सारा जोर जो है उस समय फोकस ये शिफ्ट कर गया
कि वी मस्ट गो इनटू प्रोड्यूसिंग सरप्लस। जैसे ही कमोडिफिकेशन बढ़ी है, जो ग्लोबली या ट्रेड बढ़ी है, तो एक फोकस आ गया कि सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे। तो सरप्लस पे सरप्लस, एवरीवन वाज इनटू प्रोड्यूसिंग सरप्लस। तो अमेरिका का सरप्लस, यूरोप का सरप्लस, बल्कि इतने दोनों के सरप्लस इतने हो गए थे कि एक समय पर लॉ ये कहता है कि आप फूड को समुद्र में नहीं फेंक सकते, आप फूड को जला नहीं सकते बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो कंट्रीज को ये प्रॉब्लम होगी कि वो एक्सपोर्ट कहाँ करें। दोनों को, यूरोप के पास भी माउंटेन्स थे, अमेरिका के पास भी माउंटेन्स थे। तो एक मुझे याद है रिचर्ड निक्सन साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमने कोई मार्केट रेवेन्यू नहीं ढूंढा अपने एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारी इकोनॉमी अपने ही वेट के अंदर कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि जितनी हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर को, उसका जब तक आउटलेट नहीं होगा तो वो तो आप जानते हैं बर्डन से ही वो दब जाएगी। तो उसके लिए दुनिया जब ये अमेरिका यूरोप का जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो सारी दुनिया के जो सोच वाले हैं लोग वो जुड़ जाते हैं कि इसका मार्केट का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। तो WTO आपने सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो शुरुआत हुई है, और मुझे याद है जिस दिन वो शुरुआत हुई थी 1995 में जनवरी 1 को WTO की शुरुआत हुई थी। और ब्रज जी, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं कभी नहीं भूला इस बात को। उस दिन एक इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर एक छोटा सा, जिसको पॉकेट कार्टून कहते हैं, वो छपा था। वो आज भी छपता है, अगर आप देखें कार्टून छपता है रोजाना। और वो मुझे याद है, उसका मैसेज था जो हम लोग इतने सालों से कहते आ रहे थे, वो उसने कार्टून में वो बात कह दी थी। वो बात ये थी, दो आदमी सड़क पे चल रहे हैं, दिख रहा है पीछे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी कोला के बैनर लगे हुए हैं। एक दूसरे से पूछता है व्हाट इज दिस WTO, दूसरा जवाब देता है वी टेक ओवर। मुझे लगा कि उस कार्टूनिस्ट ने छोटे से कार्टून में सारी कहानी जो है हमारे सामने व्यक्त कर दी। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है कि वी टेक ओवर, किसने टेक ओवर करना है। अब आपके सामने जो मैं बात कर ही चुका हूं कि जिनके पास सरप्लस था, दे नीड टू फाइंड ए मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। एक चीज तो ये भी होगी। देन लेट अस लुक इनटू द implication or the attraction for technologies. अब टेक्नोलॉजीज क्या हुई, इसका वो है आपके पास? वैसे नॉर्मली मैं यूज नहीं करता, बट आई थिंक आई यूज दिस बिकॉज यू आर ऑल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। आपने कभी वो स्माइली देखी है ना, उसका इमोजी है ना, तो उसका अगर आप ये देख लें, यही होता है ना यूज। अब देखिए, अगर इस तरफ आप रखें जो एग्रीकल्चर का इनपुट सप्लायर है, और इस तरफ रखें जो एग्रीकल्चर का बायर है, और यहां आप रखिए फार्मर को। इस स्माइली तो हमारे लिए हो गई, पर एक्चुअली इट्स ए डेथ ट्रैप फॉर द फार्मर्स। आप देखिए, कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी आप कहीं पर भी दुनिया में देख लीजिए कि आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर का इनपुट प्रोवाइड करता है, यानी फर्टिलाइजर, सीड, टेक्नोलॉजी जो भी है, he is raking in profits। जो ये बायर है, चाहे वो कंपनी हो बड़ी, नेस्ले से लेके फूड ब्रांड्स हो, या छोटा सा आड़तिया हो या ट्रेडर हो आपका, he is also raking in profits। लेकिन क्या कारण है कि फार्मर जो है, जो कर्व के बिल्कुल नीचे है, वो तो वैसे का वैसे ही उसकी डिस्ट्रेस बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये मैं आपके पास यहाँ छोड़ देता हूँ, एंड वी विल कम टू इट लेटर, बट आई थॉट दिस आई शुड ड्रॉ योर अटेंशन। आप इसको सोचिए कि क्या कारण है कि ये दोनों, कभी आपने सुना कि किसी कंपनी के मालिक ने कभी आत्महत्या की हो, या कभी आपने सुना कि किसी बायर ने आत्महत्या की हो? किसान ही आत्महत्या करता है। इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इनके स्टॉक्स बढ़ते हैं, सब कुछ होता है, ये किसान जो है ये वही का वही बढ़ा, बल्कि इसकी इनकम तो कम होती जा रही है। सो वी कम टू दैट लेटर। लेकिन जो मैं टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपसे बात कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी की बात जो चली, आई थिंक लेट्स लुक इनटू इट। ये जो आपने कहा, इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी हम देखेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की पॉलिटिकल इकोनॉमी, एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी इसकी इम्प्लीकेशन बाय वे ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से हम देखते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करें कि जितनी हम टेक्नोलॉजीज लाते गए, उससे क्या हुआ, उससे पैदावार बढ़ी। यही हमारा सोच है ना कि जितनी पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी इनकम बढ़ेगी किसान। ये आपने सुना है, आपको भी पढ़ाया जाता होगा, विच इज बेसिकली ए फंडामेंटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे ये बताया जाता है जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतनी मेरी इनकम बढ़ेगी। जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, दब के बाद रज के खा, मतलब जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना आपकी ज्यादा इनकम होगी। पंजाब की बात देखते हैं, आज पंजाब टॉप पे है भारत में। पंजाब की बात देखते हैं, पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वीट की,
एंड देन आई कंबाइन विद राइस, 2 क्रॉप्स होती हैं वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न, साल में व्हीट फॉलोड बाय राइस। प्रोडक्टिविटी हम उसमें सारा बढ़ाने के लगे हुए हैं, और प्रोडक्टिविटी आज दोनों क्रॉप्स की देखें तो दुनिया में जो ऊपर के 4 कंट्रीज हैं उसमें पंजाब आता है, और प्रोडक्टिविटी 11 टन प्रति हेक्टेयर उनकी प्रोडक्टिविटी है, 11 टन पर हेक्टेयर। दे यूज ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बल्कि ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। आज पंजाब में 1 लाख ट्रैक्टर्स की जरूरत है, और पंजाब के पास 5.5 लाख ट्रैक्टर। एक जो सिंबल था एक टाइम पर कि ट्रैक्टर जो है इट इज अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर फार्मर्स, है ना, सिंबल ऑफ ग्रोथ, इट हैज नाउ बिकम अ सिंबल ऑफ सुसाइड। नाउ ओवर यू नो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक जो हम सोचते हैं ना कि टेक्नोलॉजी होगी तो सारा कुछ हो गया, नहीं, इट हैज ए, वो जो कर्व है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैक्टर वाला तो खुश है क्योंकि उसने अपना ट्रैक्टर बेचा, उसका तो स्टॉक मार्केट बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लुक एट दैट फार्मर हु इज सैडल्ड विद दैट टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर ट्राइंग टू यूज। और मुझे लगा कि आज आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना है सर, इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग टू सी, अलग अलग उसके कुछ एक एग्जाम्पल देखें। आई लाइक टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या हुआ क्या है पंजाब में। मैंने कहा ट्रैक्टर है, अभी आपने सुना स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में, है ना, आप लोग सब दुखी भी होते होंगे, देखो जी किसान पंजाब के को कुछ नहीं आता करने को, अक्सर बिहार में भी होने लगी है, बिहार में भी होने लगी है। तो वो जो प्रोसेस है वो उसको हम ये मान के चलते हैं कि साहब ये बेवकूफ़ी है किसान की। मुझे बल्कि कई बार फोन आता है दिल्ली से, किसान लोग मुझे फोन करेंगे, सर ये आपको मैं एक समाधान देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। तो समाधान ये है कि साहब ये किसान को ये समझाइए कि वो अपनी जो स्टबल है उसको जमीन में ही वो उसके द्वारा बुआई कर दे। मैंने कहा आप क्यों सोचते हैं कि किसान इतना भी जानता नहीं है कि उसको जमीन में क्या करना है। द ओनली पॉइंट इज कि उसकी लिमिटेशन को समझिए, उसके क्राइसिस को समझिए, देन ट्राई टू सी व्हाई इज इट बर्निंग दैट क्रॉप। बट वी विल नॉट कम टू दैट बर्निंग पार्ट, लेट्स लुक इनटू इट कि हमारा हमने किया क्या। हमने उसका सोल्यूशन दिया, हमने कहा कि हैप्पी सीडर मशीन है, उसका आप उपयोग करिए, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सोइंग का टाइम जो है बिल्कुल वो मशीन काट ही देती है, उसको बिछा भी देगी, सोइंग भी कर देगी। जब ये मशीन आई थी तब भी सवाल उसके ऊपर उठे थे, बट एनीवे मशीन का इंटरेस्ट था, जो मैंने कहा आपके इनपुट सप्लायर हैं तो उनका फोकस था, वो बढ़ी। आज ये हालात है कि पंजाब में हमने किसानों को एक मशीन नहीं चाहिए होती, इसके साथ 4-5 मशीनें और चाहिए होती हैं। आपको मल्चर चाहिए, आपको रोटावेटर चाहिए, आपको बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, छोटे ट्रैक्टर से नहीं वो आप उसका उपयोग कर सकते रोटावेटर को। तो वो सब मशीनें मिला के 5 मशीनों का सेट जो है किसानों को दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मशीन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए काम करती है साल, और बाकी सारा साल वो किसान के खेत के ऊपर खड़ी है। ये टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी पुश करते हैं, वी ऑल फील वेरी एक्साइटेड कि टेक्नोलॉजी दीजिए, पर क्या ये टेक्नोलॉजी जरूरत थी? आई थिंक इट इज फॉर यू टू डिसाइड नाउ कि क्या होना चाहिए था। 5 मशीनें खड़ी हैं उसके खेत पर, और मैंने कई बार कहा है लेट अस नॉट मेक पंजाब ए जंक यार्ड फॉर मशीन्स। आने वाले दिनों में इट विल बिकम अ जंक यार्ड फॉर मशीन, जिस तरीके से हम मशीन लाते जा रहे हैं उनके ऊपर। मैंने आपसे कहा कि पहले ही उनकी जो 11 टन की जो प्रोडक्टिविटी है इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप उसमें अब क्या ऐड कर लोगे कि आप उसको 12 टन कर लोगे? देयर इज अ सैचुरेशन लेवल, आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये नहीं है कि यू कैन गो ऑन एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो समझ आपको ये आना चाहिए कि अब कहा जा रहा है कि सब एक ड्रोन भी आ गया है ना। तो ड्रोन जब हम देखते थे कि शादियों में ड्रोन यूज हो रहे हैं तो हमें समझ आता था, लेकिन अब पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए ड्रोन यूज होना चाहिए। अब देखिए एक तरफ तो हम ड्रोन को प्रमोट करते हैं विच इज गुड, ठीक है, टेक्नोलॉजी है आपकी, आप ला रहे हैं, और जिस इनपुट सप्लायर को फायदा होगा वो तो उसमें करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी एक बायोडाइवर्सिटी की इंटरनेशनल कन्वेंशन खत्म हुई है, आप नहीं जानते हैं, COP15 कहते हैं उसको, कनाडा में जो हुई थी। उनका जो ग्लोबल फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है दुनिया के लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसमें उन्होंने कहा है कि 2030 तक हर कंट्री को, उन्होंने हर कंट्री कहा, इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया, लेकिन उनका यह कहना है कि 2/3 पेस्टिसाइड का उपयोग हमें कम करना है। देखिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ये है, और ये आपकी बात बेंचमार्क है, ये नहीं कि आप छूट जाएंगे। तो इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो ड्रोन जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ड्रोन जो है वो पेस्टिसाइड छिड़कता है। एक तरफ तो हम ड्रोन का बढ़ावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी फॉलो करना है कि भी हमें 2/3, 2030 दूर नहीं है, 2030 तक हमको ये कम करना है। सो आई थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं कि उसमें टसल में कौन कहां पर उसको सक्सीड करता है या पुश करता है। नो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगेन ड्रोन वाले को तो फायदा हो जाएगा, 8 लाख की मशीन आती है, किसान तो खरीद नहीं सकता, तो कहते हैं कि साहब सरकार सब्सिडी दे। चलो सरकार ने 4 लाख भी दे दिए, सपोज करिए, किसान ने बाकी लगा लिए, अल्टीमेटली तो किसान को वो देना ही है ना 4 लाख फॉर दैट जॉब जिसका आज दुनिया में जरूरत नहीं मानी जा रही है।
बट वी आर ट्राइंग टू पुश इन दैट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का उपयोग है, लेकिन इफ वी डू इट विद इन आवर लिमिटेशन। जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर की हम बात करते हैं, कंबाइन हार्वेस्ट मध्य प्रदेश से शुरू करता है अपनी वीट की हार्वेस्टिंग, और जाते जाते वो अल्टीमेटली पंजाब के कोने में जाके सिस्टमेटिकली जैसे रैकनिंग होती है उसके साथ साथ चलता है। वो जो एक मशीन थी, अब उसका भी एक लिमिट है। आई डोंट थिंक वी कैन स्ट्रेच इट कि उसके और भी ज्यादा मशीनें ले लें जितनी जरूरत नहीं है, तो वी विल अगेन बी क्रिएटिंग ए जंकयार्ड फॉर मशीन्स इन पंजाब। पर मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि भाई लेट अस लुक इनटू दिस ब्रॉडर पिक्चर। अब आप कहेंगे कि साहब ये टेक्नोलॉजी जो है ये भारत में तो चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई इस क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर, लेकिन कंट्री लाइक अमेरिका उसमें तो मैन बहुत जरूरत है टेक्नोलॉजी को, उन्होंने कर दिखाया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी के साथ और क्या चीज कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि हम एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकें। अमेरिका में 1970s में जो डेयरी फार्म्स थे किसानों के, या छोटे छोटे किसान जो थे, 6.5 लाख उनके डेयरी फार्म्स थे अमेरिका में। और जब मैं अमेरिकन डेयरी फार्म की बात करता हूं तो आप लोग जो इमेजिनेशन करते होंगे कि भाई कैसा डेयरी फार्म होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड एंड सो ऑन, वो बिल्कुल था। मतलब उसमें हर एक किस्म की टेक्नोलॉजी थी, दूध भी नहीं आपको उसको मिल्किंग भी मशीन करती है, आप ये जानते ही हैं। और उसमें इंटरेस्टिंगली जब आप ये सारा पैटर्न करते हैं तो आपकी मिल्क काउस जो है वो भी हाई यील्डिंग है, वहां पर वो भी था। तो दोनों चीजें थी, टेक्नोलॉजी भी थी और इवन इम्प्रूव्ड ब्रीड भी थी इनके पास। 6.5 लाख डेयरी फार्म थे अमेरिका में इन 1970s। बाय द एंड ऑफ 2020 उसमें से 93% हैड क्लोज्ड डाउन। ये क्या कारण था कि इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ द फार्म्स हैड क्लोज्ड डाउन? और इतना भयंकर डिस्ट्रेस था भरत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 12-15 साल पहले की बात है, मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज देखा, उसमें ऊपर था कि सुसाइड किसान ने की है तो किस गोरी स्टाइल से की है, GORY। उन्होंने बताया कि उस किसान इतने डिस्ट्रेस में था कि उसने पहले अपनी 51 काउस को गोली मारी एंड देन ही किल्ड हिमसेल्फ। सो लुक एट द डिस्ट्रेस दैट फार्मर मस्ट बी कि उसने अपनी गाय को भी पहले सबको गोली मार के। और रिजल्ट ये था कि जैसे जैसे ये बंद हो रहे थे डेयरी फार्म्स अमेरिका में, तो उसके साथ क्या हो रहा था कि ये नहीं कि मिल्क प्रोडक्शन कम होगी, ये नहीं था कि लोगों की मिल्क हैबिट्स बदल गई, ऐसा कुछ नहीं था। डिमांड एंड सप्लाई का कोई वो नहीं था, प्ले नहीं था वहां पर। वहां पर प्ले ये हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनको मेगा डेयरी फार्म्स बनाने थे, जो मेगा डेयरी फार्म्स का मतलब है कि अमेरिका में मेरे ख्याल से आज सबसे जो बड़ा मेगा डेयरी फार्म है उसके पास 40,000 गाय है। तो ये लोग जब गाय मतलब मिल्क में आ गए तो प्राइसेस स्टार्टेड डिप्रेसिंग। आप जानते हैं जब सरप्लस प्रोडक्शन होगी, मैंने आपसे शुरू में भी एक जगह कहा था कि सरप्लस पैदा करो तो प्राइसेस उससे डिप्रेस हो गए। तो जो छोटा दूध वाला है उसकी तो मार्केट से बाहर हो गया वो, तो either he commits suicide और he gets out of the market। उसने दोनों काम किए, उसने सुसाइड भी की और मार्केट से भी बाहर निकल गया। मैंने आपसे कहा कि 93% जो डेयरी फार्म्स हैं अमेरिका के बंद हो गए। Now the point I'm trying to make is, और वही आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी समझनी है कि ये टेक्नोलॉजी होते हुए भी किसान वहां क्यों मरा। आई थिंक सोचिए जरा, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग इट कि क्या कारण था कि किसान इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मर गया और जो भी आपने देखा कोलैप्स कर गया है। नो द पॉइंट अगेन इज कि हम लोग सारे हमारे हिंदुस्तान में आप किसी डेयरी फार्मर से बात कर लीजिए, उसकी इमेजिनेशन में अमेरिका का डेयरी फार्म है, वो वही लाना चाहता है एक स्टेज पर, लेकिन फिर अमेरिका का किसान तो मर गया। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। And I think let's look into that part कि technology alone cannot be a player. We need to understand कि साथ में क्या चीज चाहिए जो हम नहीं देना चाहते उसको किसान को। एक मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, लेट्स लुक एट एग्जांपल्स इन इंडिया। आपको हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर क्रॉप में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जिस तरीके से हुआ। और आप सोचें कि भाई नहीं, ये तो देवेंद्र शर्मा ने हमें तो बात बताई है अमेरिका की, बट लुक इनटू यूरोपियन यूनियन, वहां तो एग्रीकल्चर बड़ा प्रॉस्पेरस है। ये आपके इमेजिनेशन में होगा कि बड़ा प्रॉस्पेरस है इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद। अब इसमें 2-3 चीजों को मैं करता हूँ, जोड़ता हूँ, सो दैट आई मेक इट इजियर फॉर यू। देखिए 2-3 चीजें हमारे इकोनॉमिस्ट बोलते आए आज तक, एंड आई थिंक आपको भी पढ़ाई जाती होगी उसमें चीजें। उसमें से मेरा मानना है कि मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट हैव बिकम आउटडेटेड। उसको हम दोबारा जबरन अपने, क्योंकि हमने किताब पढ़ानी है या जो भी करना, हम उसको रिपीट करते रहते हैं। एक चीज ये कहा जाता है कि जब तक एग्रीकल्चर में इतनी पॉपुलेशन रहेगी तब तक वो किसान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी नहीं बन सकती। ये आपने सुना होगा, अक्सर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं।
अमेरिका में मैंने आपसे कहा कि खेत में लोग कम रह गए हैं, आज सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन, 1.5% इज इन एग्रीकल्चर अगेंस्ट 50% इन इंडिया। तो हमारे देश के भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साहब जैसे अमेरिका में कम हो गई है, हमारी भी कम होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट आप भी सुनते आए होंगे और आगे भी सुनेंगे। ना इंटरेस्टिंगली ये आर्गुमेंट है कि साहब जितने कम हो जाएंगे उसकी उनकी इनकम डबल हो जाएगी। तो अमेरिका में जो किसान है 1.5%, उसकी इनकम तो डबल हो जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका का जो किसान है 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में गए थे, तो 2020 में अमेरिकन फार्मर्स के ऊपर 425 बिलियन डॉलर्स का कर्जा खड़ा था। 425 बिलियन डॉलर्स का कर्जा खड़ा था किसानों के ऊपर। इट टेल्स यू कि सारी टेक्नोलॉजी लेने के बाद, क्योंकि उनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी में आते हैं वो दुनिया भर की, उसके बाद भी उनका ये क्राइसिस था कि उनकी किसान की, मैं आपको बता ही दिया कितना बड़ा उनके ऊपर बर्डन था। ऑन टॉप ऑफ इट अमेरिकन गवर्नमेंट ये समझती है, तो उन्होंने क्या किया, दे वर पंपिंग इन सब्सिडीज। हर 5 साल में अमेरिका में एक फूड बिल आता है। ये अलग होता है गवर्नमेंट के बाकी प्लान से। फूड बिल में अगले 5 साल में कितनी मैसिव सब्सिडी दी जाएंगी वो उसमें प्रावधान होता था। अगर आप गूगल करेंगे आपको वो भी मिल जाएगा, फूड बिल का अभी लेटेस्ट जो अभी इस साल शुरू होना है वो भी आपको उसका मिल जाएगा, ब्रेकअप मिल जाएगा। बट एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये सोचा तो ये था कि भाई लोग कम होंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, एम राइट? ये हम सबको भी समझ आता है, हम भी सारे यही कहते हैं कि साहब जितने कम होंगे उतनी इनकम बढ़ जाएगी। लेट्स लुक इनटू अमेरिका, सॉरी अमेरिका के बाद यूरोप को देखें। यूरोप में कोई भी कंट्री देख लीजिए सिवाय फ्रांस के 3% पॉपुलेशन रह गई है एग्रीकल्चर में, और उसके अलावा इंग्लैंड के देखें तो 1% से कम है। आप स्वीडन के देखिए तो वो भी 1% के आसपास है। मतलब कहने का कि सब कंट्रीज की 1 और 2% के आसपास पॉपुलेशन रह गई एग्रीकल्चर में। नो द पॉइंट इज कि आर देयर फार्मर्स इकोनॉमिकली वायबल या प्रॉफिटेबल? लेट्स सी इनटू दैट। अमेरिका यूरोप में ये हालात हैं कि फ्रांस के जो फार्मर्स हैं जो सब कुछ अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया होगा या आप पढ़ाई में बोलते होंगे, प्रिसीजन फार्मिंग करिए, आप ये टेक्नोलॉजीज लेके आइए, कोई गैप नहीं छोड़ते, वो हर चीज पर ब्रेकअप किया हुआ, मशीनों ने काम करना सारा कुछ, वहां के किसान भी करते हैं फ्रांस के। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि अभी किसानों ने प्रोटेस्ट किया वहां फ्रांस में, प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट है उसके बाहर जो पेड़ है उसके ऊपर सुसाइड डॉग्स को हैंग किया टू से कि हमारा ये हाल है। This is in a country which is the most progressive as far as technological inputs are concerned, applied in agriculture. तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि सुसाइड्स इतने हो रही हैं, और फ्रांस में जो सुसाइड्स हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो यूरोप में सबसे हाईएस्ट जो है वो फ्रांस का, बिकॉज लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूरोप की है। अमेरिका में आज ये हालात है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो सुसाइड्स हो रही हैं दैट इज 45% हायर देन द अर्बन एरियाज। दिस इज अमेरिका। Now the point I'm trying to make is क्या कारण है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर भी सुसाइड कर रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। और अगर आप सोचें कि भाई नहीं, अभी हमारे देश में तो जैसे आप बिहार में देखते हैं आपकी जो लैंड होल्डिंग है वो 5 एकड़ से तो 86% की देश में कम है, लेकिन आपकी तो उससे भी कम है, am I right? आपके जो लैंड होल्डिंग है बिहार के वो तो उससे भी कम है, 1-2 एकड़ के आसपास होगा सर एवरेज, है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि ये तो कभी वायबल हो ही नहीं सकता, यही भी आप भी पढ़ते होंगे। फिर क्या होता है कि आजकल एक एफपीओ का फैशन भी आ गया है, व्हिच इज गुड। एफपीओ क्या कहते हैं कि जब हम एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट से हम अपना बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ जाती है मार्केट में, या राइट? ये दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव आल्सो स्टडी। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली एग्रीगेट करेंगे, आप कितना एरिया एग्रीगेट कर लेंगे? 1000 एकड़, 2000 एकड़, 4000 एकड़, एम राइट? है ना? 4000 एकड़ एवरेज रख लीजिए अगर हम इतना कर पाते हैं तो, जिसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। आप सोचते हैं कि किसान की हालत उससे सुधर जाएगी, यही है ना फोकस एफपीओस का या बाकी कोऑपरेटिव्स का, यही फोकस है। पर ये क्या कारण है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया में 20,000 किसान हैं। ऑस्ट्रेलिया में 20,000 किसान के पास जो लैंड होल्डिंग है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज खेत का आकार है वो 14,000 एकड़ है। 14,000 एकड़ तो हम यहाँ इंडिया में कोई एफपीओ नहीं जोड़ सकता, जोड़ भी लेगा हम ये कह रहे हैं कि साहब उससे उसकी किसान की इनकम बढ़ जाएगी। तो अगर वो 14,000 एकड़ एक किसान का है तो ही शुड बी लिटरली डिक्टेटिंग द मार्केट, एम आई राइट? आप समझे? जब आप मार्केट्स की बात करते हैं कि मार्केट में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाने से किसान की इनकम बढ़ जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया के किसान की तो इनकम बढ़नी होनी चाहिए थी ज्यादा। इंटरेस्टिंगली पिछले 30 साल में ऑस्ट्रेलिया में 25% फार्म तो बंद हो गए,
और उनका रेट ऑफ सुसाइड देखिए डबल है इन द रूरल एरियाज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। क्या कारण है कि वो 14,000 एकड़ होने के लिए, मैंने एवरेज बताया, हो सकता है जो और बड़े किसान हो उनके पास 2-2 मील का भी रकबा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां किसान मर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि वो 5 एकड़ वाला है वो भी मर रहा है, जो 14,000 एकड़ वाला है वो भी मर रहा है। इसका मतलब जो हमें बताया गया था कि छोटी लैंड होल्डिंग्स जो है वो अनवायबल है, वो इसका मतलब उनको ये नहीं पता था कि जो बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं वो भी अनवायबल है। यू गेट माय पॉइंट? जो छोटे वाला है वो तो हम मानते ही है, 5 एकड़ में वो क्या खेती करेगा, उसको निकल जाना चाहिए, उसको इसमें आना चाहिए, सब पॉलिसी में ये थ्रस्ट रहता है। लेकिन जो 14,000 वाला है उसका तो कोई कारण नहीं है ना कि वो खेती से बाहर हो रहा है, लेकिन वहां भी तो हो रहा है। सो इफ यू लुक एट द ग्लोबल मैप, you realize from America to Australia, the agriculture, global agriculture is in crisis. और ये सारी वो कंट्री है जो टेक्नोलॉजी पुश करती है। आजकल ये हाल हो गया है कि अमेरिका में अगर आपके पास ट्रैक्टर है या कंबाइन हार्वेस्टर है, और वो जॉन डियर कंपनी आप जानते हैं, बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी, यहाँ भी लोग जॉन का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो कर दिया है कि अगर कोई आपका कोई फॉल्ट आ जाए ना मशीन में, तो आपका लोकल मैकेनिक नहीं उसको ठीक कर सकता, वो आपको उनको बताना पड़ेगा कंपनी को, जो कंपनी वहां से डायरेक्शन देगी तब वो जाके ऑपरेशन होगा। आप देख लीजिए छोटे जो कारीगर हैं उनका भी काम उन्होंने वहां पर खत्म कर दिया। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया अमेरिका में, और जाके इस साल अब जॉन डियर कंपनी ने मान लिया कि हम नहीं करेंगे। आपको हैरानगी होगी, जॉन डियर कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है, ये तो आप समझ गए। लेकिन आपको ये भी हैरानगी होनी चाहिए सुन के कि वहां इंजीनियर कम है, सॉफ्टवेयर वाले ज्यादा हैं वर्कर्स। So the world is moving now. टेक्नोलॉजिकल जिसकी हम इनपुट की बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड भी मूव कर रहा है, उसको भी समझें। और उन्होंने कोशिश ये भी की कि मैकेनिक का काम भी वो खत्म कर दें, वहीं से ऑपरेट करें और उसको ऑपरेट। अब जब आप सुनते हैं कि ड्राइवरलेस कार सुनते हैं आप, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर भी सुना है आपने कई बार? ड्राइवरलेस ट्रैक्टर भी आ गया है, और ये बताया जाता है कि साहब ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ये दुनिया का, किसानों का, खेती का कितना बड़ा फायदा करेगी। सब ठीक है, ये भी हम जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, और ये भी ठीक है। पर किसान शायद ये मानते हैं कि चलो उनका काम आसान हो गया, अब तो बैठे बैठे ऑर्डर ही करना है आपको, और रिमोट से चलाना है आपने, वो भी ठीक हो गया। लेकिन आप सोचें ये कि यहीं पर बात नहीं खत्म हो रही है। The world is now moving using artificial intelligence, टेक्नोलॉजी की इसकी हम बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कि ड्रोन को आपने ऑपरेट कर लिया उसकी करने के लिए, अब टेक्नोलॉजी इस तरफ मूव कर रही है कि अगर आप देखें अब कंट्रीज, नॉट ओनली कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग ताकि वो एक रोबो एग्रीकल्चर को लेके आए। यू नो, एंड यू विल बी थिंकिंग कि अमेरिका कर रहा होगा या यूरोपियन यूनियन कर रहा होगा। नहीं, थाईलैंड इज वन कंट्री जिसने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कि पूरे एग्रीकल्चर को हम रोबो से चलाएं, वी डोंट नीड फार्मर्स। तो डोंट थिंक कि दिस इज समथिंग इन आइसोलेशन, इसको आप समझिए बड़े को। अगर थाईलैंड इज अ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस, अगर वो प्रयास कर रहा है कि खेती से एग्रीकल्चर या किसान जो है बाहर हो जाते हैं, वी आर नाउ हेडिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर यू एक्चुअली डोंट रिक्वायर फार्मर्स। अभी आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो you are talking of maybe a scientific fantasy or whatever, but आप देखिए क्या हो रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए या जानना चाहिए, अभी जनवरी से Finland is one country which has established the world's first food factory. आपने सुना भी नहीं होगा शायद बहुत से लोगों ने। वो क्या करेंगे? They will not use any land, they will not use any farmer. कंपनी के अंदर ही, उस इंडस्ट्री में ही वो एयर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग निकाल के with the bacteria they are going to make food for you. And this has been regulated, approval हो गया इसका. And the company is now going to come out with what is called as synthetic food. तो सिंथेटिक फूड आपके पास आ रहा है। सिंथेटिक फूड में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो है प्रोटीन होना चाहिए। हम सब के लिए प्रोटीन की बात होती है, तो दे आर ऑल इंश्योरिंग कि दे आर प्रोटीन रिच जो भी फूड आ रहा है वो आपके पास आएगा। आप सोचेंगे चलो यार ये तो फिनलैंड में हुआ है, इट्स ए कंट्री विच इज फार अवे फ्रॉम अस, तो हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि 170 ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है। 170 food factories have already is been established, and they are producing. मैंने आपसे कहा है कि from the air they are going to produce food for you. This is called synthetic food or artificial food or whatever. Starting with meat, they are going ahead with other crops also. अब देखिए इंटरेस्टिंग इस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो एक कंपनी का, मैं अभी एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक वीडियो सर्विस शुरू हुई है, मैं उसकी इंटरव्यू देख रहा था। वो क्या बोलते हैं, जैसे उसके पास गए कि भाई आप तो हवा से फूड बनाओगे तो व्हाट विल हैपन टू फार्मर्स, ये पूछा फाइनेंशियल टाइम्स ने। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, कहता आई एम इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैंड।
क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम लैंड की है। तो अगर मैं लैंड का उपयोग ही नहीं कर रहा हूं तो आई एम एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग मोर लैंड। अब ये इसको आप गलत नहीं कह सकते। दिस मेक सेंस कि जो कह रहा है कि मेरे को अब लैंड की जरूरत नहीं है, मुझे किसान डिस्ट्रेस में है दुनिया में, मुझे किसान की भी जरूरत नहीं है। सो उसने तो एक नया आपके सामने एक टेक्नोलॉजी का एक नया प्रतिबिंब खींच दिया है। नाउ आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस न्यू फेज दैट वी आर एंटरिंग इनटू इज कॉल्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इट वाज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 3.0। वी आर नाउ गेटिंग इनटू 4.0। अब वहां पर देखिए क्या हो रहा है। वहां पर ये कि आप जानते हैं कि डाटा माइनिंग होती है, आप लोग तो ज्यादा इन चीजों से ग्रैपल करते होंगे। डाटा माइनिंग हो रही है, डाटा कलेक्शन होती है, डाटा न्यू पावर और न्यू मनी जिसको कहते हैं वो डाटा में है ना। वो डाटा जो है और यूजिंग ऑल द क्लाउड जो सिस्टम्स होते हैं क्लाउडिंग के, वो सब करके वो एक जगह असेंबल हो जाता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इंटरेस्टिंग इज अमेज़न हुआ या स्विगी हुआ, ये सब जो हैं फूड जायंट्स हैं, इनके पास वो सारा डाटा आ जाता है। सो दे नो नाउ कि आपको फूड हैबिट्स आपकी क्या है, आपका टेस्ट क्या है, आपकी क्या 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 चीजें उसमें जानी चाहिए, ये सब उनको उसमें दिख जाता है। सो उनका जो फूड प्रोडक्ट्स अब बन रहे हैं दे आर इन दैट डायरेक्शन बेस्ड ऑन द डाटा दैट दे हैव कलेक्टेड। माय पॉइंट इज ओनली वन दैट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज मूविंग टुवर्ड्स ए वर्ल्ड। अगर आपने पता नहीं, आपने बच्चों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, एल्डस हक्सली ने एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस राइटर थे, A Brave New World, and then he wrote another book called Revisiting या something like that, Brave New World। तो Brave New World को कभी आप गूगल करें, आप उस किताब को देखिए। You know what he has imagined, हम आज पॉलिटिकल था वो, और हम आज अगर हम एग्रीकल्चर की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो we are moving in that direction। Now 10 साल बाद एग्रीकल्चर दुनिया का कैसा लगेगा मैं नहीं कह सकता। I'm not that futuristic like Aldous Huxley, but the point I'm trying to make is कि we are fast moving towards a world जहां पर किसानों की जरूरत नहीं होगी। अब आप इसमें थोड़ा सा ये सोचें कि नहीं टेक्नोलॉजी जब तक आएगी तब तक तो ये सब कुछ होगा। लेट्स लुक इनटू अनदर एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज कि अभी भी हाल में क्लाइमेट चेंज की दुनिया में बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, हम जानते हैं कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग जो हम करते हैं, टू मच ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। उसको कम करने का फोकस है। अब उसको कम करने का फोकस, अब देखिए कहां जा रहा है फोकस। आप में से कितनों ने पढ़ा है कि न्यूजीलैंड इज ए कंट्री ऑफ डेयरी। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो डेयरी की है, राइट। उसमें एग्रीकल्चर कम होता है, डेयरी होता है उनका, ठीक है। न्यूजीलैंड में एक उन्होंने टैक्स लगा दिया है क्योंकि जो गाय है उससे गैस बहुत निकलती है। अब वो गैस के ऊपर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने, मतलब गाय पे टैक्स लग गया है कि उसका जो मीथेन एमिशंस हैं या उसके गैसियस एमिशंस हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। Many farmers have already said कि हम तो खेती छोड़ रहे हैं, ये टैक्स हम पे नहीं कर सकते। एक बात होगी। आप सोचें कि न्यूजीलैंड का अलग एग्जांपल होगा। लेट्स लुक इनटू इंग्लैंड। इंग्लैंड सरकार ने अपने किसानों को कह दिया है कि हम आपको एक लंप सम पैसा देने को तैयार हैं अगर आप खेती छोड़ के बाहर आ जाए। तो वहां पर ये चल रहा है मुहिम, 3000 के आसपास वहां के जो किसान हैं उन्होंने ऑलरेडी वॉलंटियर कर लिया कि हमें पैसा दीजिए, हम बाहर जा रहे हैं। एंड इंग्लैंड में कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, 1% से कम उनका खेती में रह गया। Then let's look into Holland. Holland is the second biggest producer of agriculture के एरिया में second biggest producer is Holland. Holland में लोग कम हैं लेकिन एग्रीकल्चरली वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपके फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से हमारा एग्रीकल्चर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को एड कर रहा है, तो हम उसको सेम जो प्रिंसिपल वहां पर लगाया गया इंग्लैंड में वो हॉलैंड ने भी अनाउंस कर दिया। हॉलैंड ने क्या, उनके पास 11,000 किसान हैं। हॉलैंड का एग्रीकल्चर सिर्फ 11,000 किसानों पर टिका हुआ है और उन्होंने उसमें से 3,000 को ऑलरेडी नोटिस चला गया कि आप खेती से बाहर निकल जाइए। नाउ इंटरेस्टिंगली हॉलैंड इज वन कंट्री जहां पर किसान, अगर आप रूरल एरियाज में जाएं, कभी आपको मौका मिले या कहीं पढ़े भी आप, उन्होंने अपने झंडे को उल्टा लगाया हुआ है एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। किसानों ने अपना झंडा हमारे देश में लगा दिया तो यहाँ तो एंटी नेशनल हो जाएंगे, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने झंडा उल्टा लगाया हुआ है एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी। बट हॉलैंड इज नॉट द ओनली कंट्री। अगेन ऑस्ट्रिया भी वही कर रहा है, जर्मनी भी वही चाहता है करने के लिए, कंट्री बाई कंट्री अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। सो व्हिच मींस जो रह गए हैं किसान, हम उनको भी बाहर निकालना चाहते हैं। 11,000 किसान तो कुछ भी नहीं हुए, आपके यहाँ तो लाखों करोड़ों किसान होंगे बिहार में। सो इमेजिन वो 11,000 किसान वाले खेत एग्रीकल्चर सिचुएशन में भी वो 3,000 को अभी पहले लॉट में बाहर निकाल रहे हैं। The point I'm trying to make is कि आपको it will be very fascinating अगर आप लोग इस बैकग्राउंड को देखते हुए कि एग्रीकल्चर में क्या क्राइसिस है और क्यों दुनिया में इतना संकट गंभीर है, and then you try to see where we are moving in agriculture 4.0.
आई थिंक वो जो है आपको जब आप एग्रीकल्चर 4.0 में जाएंगे तो आपको ये स्माइली याद आनी चाहिए। जितने भी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं दे आर हियर, आपके जितने स्टार्टअप्स हैं इंडिया में दे आर हियर, और जितने आपके एफपीओज हैं दे आर हियर। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं दोनों के, मैंने पहले आपसे कहा, लेकिन आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड दी पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये दोनों आप देखते हैं शोर मचता है कि साहब स्टार्टअप भी बनाइए, सब आप ये भी करिए, एफपीओ भी बनाइए, लेकिन जिसकी मदद करनी चाहिए वो बॉटम पे है, फार्मर। और फार्मर की इनकम का ये हाल है कि लेटेस्ट जो डाटा आया है भारत सरकार का, इट इज कॉल्ड एज द सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स, 2019 का डाटा है, आप गूगल कर देंगे आपको मिल जाएगा। सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे कहता है कि किसान परिवार की औसतन आय 10,218 रुपए है पर मंथ। 10,218 रुपए पर मंथ, ये वो है तब है जब उसका नॉन फॉर्म एक्टिविटीज से भी उसकी इनकम जुड़ी है। यानी अगर आप मनरेगा में काम करते हैं या कोई स्कूल टीचर है, जो भी है, आपकी जोड़ के उन्होंने 10,218 रुपए की इनकम उन्होंने उसमें आंकी है। इंटरेस्टिंगली जब आप देखते हैं ना कि नॉन फॉर्म को छोड़ दीजिए, जब आप सिर्फ एग्रीकल्चर को देखते हैं, खेती से जो उसकी इनकम हो रही है, आपको हैरानगी होगी, झटका लगना चाहिए, 27 रुपए पर डे इज द इनकम। 27 रुपीज पर डे इज द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ओनली एग्रीकल्चर, सारे देश के अगर आप एवरेज निकालते हैं। अब बताइए मुझे 27 रुपीज, तो आई डोंट थिंक वी कैन एवर इमेजिन कि हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। आज ये हालात हैं, अगर आपके पास 2 गाय हैं तो आपकी इनकम ज्यादा है आप जो खेती से करते हैं। तो ये सिचुएशन में अगर हम आज आगे हैं तो ऑब्वियसली किसान तो चाहेगा कि खेती जितना जल्दी वो छोड़े, उसको ऑल्टरनेटिव व्यवसाय मिल जाए, पर इसका ऑल्टरनेटिव या इसका जो रियल जो जिस पाथवे पे हमें चलना चाहिए, जो मेरे सामने है, आई लाइक टू प्रेजेंट विद यू एंड देन वाइंड अप, वी कैन हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर दैट, लेकिन आपके सामने मैं एक सॉल्यूशन भी आपको देके जाना चाहता हूं। 2 चीजों से हम देखें, एक तो एनवायरनमेंट का क्राइसिस है, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दूसरा हम देखते हैं जो मैंने आपसे बताया डिस्ट्रेस जो एग्रीकल्चर में प्रिवेल करती है। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। पहला तो है कि हमें केमिकल फार्मिंग से नॉन केमिकल फार्मिंग की तरफ बढ़ना है। एग्रो इकोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन, दुनिया में आज हो गया, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने फ्रॉम द 1 जनवरी दिस ईयर उन्होंने 264 बिलियन यूरोस का प्रावधान किया है बजट में कि 2030 तक वो फ्रॉम केमिकल टू नॉन केमिकल शिफ्ट करेंगे। अगर यूरोपियन यूनियन कर सकता है, एंड डोंट थिंक कि किसानों के लिए, आपके लिए भी है, बिकॉज सेफ एंड हेल्दी फूड इज व्हाट यू रिक्वायर। और आप भी देख लीजिए, रिमेंबर आपके घर में जितने भी मेंबर हैं फैमिली के, देखिए कितने लोग हैं जो दवाइयों पर ही रहते हैं। आप देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, मैं भी एक ऐसा सज्जन हूं जो दवाइयों पे रहता हूं सुबह से लेकर शाम तक, कभी डायबिटिक तो कभी हार्ट, और ये सब तो सबका यही है, हाइपरटेंशन ब्ला ब्ला ब्ला। सब फैमिली जो है आज आप देख लीजिए वो बेसिकली ड्रग्स के ऊपर अधिकतर जो पार्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली उस पर जीवित है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको वो सिचुएशन चाहिए या आपको हेल्दी वेल्दी वाली सिचुएशन चाहिए। तो अगर किसान अगर एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम में जाता है, केमिकल कम उपयोग करता है, तो यू आर आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। ये मत सोचिए कि आपको फायदा नहीं है, आपके करके है कि वो अगर उस बात को लेसन उसको मिल जाए कि साहब मुझे इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए, वो करेगा। एक बात। दूसरी बात कि अब जब हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि व्हाट इंडिया शुड डू इज फॉरगेट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम बाहर देखते हैं, फिर उसको कट एंड पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ चिपका के बोलते हैं कि साहब ये हमारे लिए रिफॉर्म है। मैंने हर जगह कहा है, विद ऑल माय अपॉलजीज टू एवरीवन सर, मैंने हर जगह कहा कि इंडियन इकोनॉमिस्ट आर द लेजी इकोनॉमिस्ट। वो कट एंड पेस्ट करके यहाँ हमें चिपकाते हैं। विद ऑल मैं भी जानता हूँ, मेरे को बात ऊपर के ब्लेम लगते हैं, बट हम देखें क्या हो क्या रहा है। 3 लॉज हम बाहर से लाए थे जो हमने इंडिया में किसानों को देने जा रहे थे। अगेन लेजी इकोनॉमिस्ट। जब दुनिया में एग्रीकल्चर का, मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया कि एग्रीकल्चर कहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग कि वो तीनों लॉ जो मार्केट ड्रिवन थे वो एग्रीकल्चर को यहाँ रिवोल्यूशनाइज कर देते थे। फंडामेंटली फ्लॉड था वो, लेकिन किसी ने बोला नहीं। लेकिन एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी मस्ट अंडरस्टैंड, आई थिंक एज यंगस्टर्स जब आप उस बात को समझते हैं और सवाल उठाते हैं, ठीक सवाल उठाते हैं, तो आपको ठीक जवाब भी मिलता है और उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। So let us understand कि why younger people like you all need to understand ये bigger political domain जो है, इसको समझे हम। एक बात। दूसरी बात देखिए, जरूरी नहीं है कि अमेरिका में 1.5% रह गया तो हमें भी 1.5% करना। नीति आयोग कहता है कि रेट ऑफ माइग्रेशन टुडे इज 1.8%। वो कहता है कि जब ये 2.4% हो जाएगा तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। अगेन द फ्लॉड इकोनॉमिक थिंकिंग, वही जो बाहर से काटा
यहाँ आके चिपका दिया। अगर अमेरिका में भी इनकम बढ़ी 1.5% होने के बाद, तो आप कैसे, और मैंने आपको और भी दुनिया का एग्जांपल दिए हैं, तो वहां नहीं इनकम बढ़ी है, तो फिर इंडिया में कैसे बढ़ जाएगी? ये कौन सा मिरेकल है जो उनके दिमाग में होगा? बट एनीवे, करने की जरूरत हमें क्या है? करने की जरूरत हमें ये है कि वी नीड टू मेक एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोडक्टिव सस्टेनेबली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली वायबल। इकोनॉमिकली वायबल एग्रीकल्चर करेंगे तो कोई किसान, मेरी बात मान लीजिए, चाहे बिहार का किसान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, कोई किसान जाके कंपनी के बाहर गार्ड नहीं बनना चाहता। कभी आप उनसे बात करिए, अधिकतर लोग जो हैं गार्ड खड़े हैं वो आपके किसान हैं। आपके गेट के बाहर भी जो खड़े हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी गांव से आते हैं और वो भी वापस गांव जाना चाहते हैं। The only point is इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वहां पर उनके लिए, तो वो आपके शहर में आके काम करते हैं, मजबूरी है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल करते हैं तो वो किसान जो है वो वहीं रहेगा। तो मेरा मतलब है कि 50% पॉपुलेशन को हम अगर उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बढ़ा देते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे इतनी डिमांड क्रिएट होगी। इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं कि साहब डिमांड क्रिएट होगी तभी आपके व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट भागेंगे। मेरा मानना है कि अगर आपका 7वां वेतन आयोग जब आया था एम्प्लॉइज के लिए, तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट कहती है कि 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल एडिशनल बर्डन स्टेट के ऊपर पड़ा है बाय वे ऑफ एडिशनल सर्विस, जो सर्विस दी गई है 4.5 लाख करोड़। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि पैसा कहां से आएगा, और वो 4.5 लाख करोड़ जो है वो उस क्लास के लिए है जो ऑलरेडी संपन्न थी, एक बात। दूसरा 4% मैंने कहा पॉपुलेशन को वो कैटर करता है। तो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट और ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं साहब दिस विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। क्यों? उससे डिमांड जनरेट होगी। मेरा कहना है कि आप सोचिए, जिस दिन हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी अधिकार बना दिया, इसके नीचे देश में खरीद नहीं होगी, तो आप देखिए कि वो जो कानूनी अधिकार बन जाएगा, इट विल ब्रिंग मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है ना? वो फार्मर्स के हाथ में जो पैसा आएगा, वो पैसा जो है आफ्टर ऑल मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में जाएगा, जो डिमांड क्रिएट होगी इतना पैसा आने से 60 करोड़ लोगों के, तो आप देखेंगे कि इट विल नॉट बी अ बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। आप समझे? लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो किताब में लिखा ना 101 इकोनॉमिक्स 101 इकोनॉमिक्स 102 या 201 में जो कोर्स मैंने पढ़े थे, जो आपने भी पढ़ेंगे आप या पढ़ रहे होंगे, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। दे आर स्टिल स्टक इन दैट, उसी फ्रेमवर्क में, बिकॉज उनमें लिखा हुआ है टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो देयर इज नो अल्टरनेटिव हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया है, इतनी प्रोग्रामिंग हो गई है, हम सोचते हैं यही एक रास्ता है विकास का, डेवलपमेंट का। लेकिन मेरा ये मानना है, इफ वी यूज टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट वी नीड टू यूज इट, एंड प्लस यूज इट विद ए इकोनॉमिक मॉडल जो किसान की खेती को इतना प्रोत्साहित करे कि वो उसके हाथ में इनकम आए। एंड आप मानेंगे कि 10,218 रुपए इवन विद नॉन फॉर्म एक्टिविटी इज अ शेम इन ए कंट्री लाइक इंडिया, 10,218। और अगर हम उसको, मेरा ये इमेजिनेशन है कि अगर हम उसको 40,000 पे लेके आते हैं, विच इज नॉट डिफिकल्ट, घबराइए मत आप। या अगर जिसने हमने सोच लिया कि हमने करना है, आप उनको 40,000 रुपए की भी इनकम दे सकते हैं, विच इज अबाउट 40% ऑफ वॉट एवर दे आर सेलिंग, उसको उनको मिलना चाहिए, विच विल कम थ्रू एमएसपी। और वो एमएसपी जब सारे देश में कानूनी अधिकार हो जाएगा, तो बिहार के जो लोग हैं दे डोंट हैव टू कम टू पंजाब टू वर्क। आपने कभी सुना पंजाबी भी यहाँ के लेबर करते हैं? क्यों? वहां पर एमएसपी मिलता है। हालांकि जितना भी उनका नुकसान बेनिफिट है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इस रेंज में वो सबसे टॉप पे है कंट्री में आफ्टर मेघालय। उनका 25,000 रुपया उनका मंथली इनकम बनता है, और हमारे यहाँ पर 7,000 रुपया आपकी इनकम बनती है बिहार में। आई थिंक मैं चाहूंगा कि पंजाब का किसान बिहार का किसान ना बने, लेकिन बिहार का किसान पंजाब के लेवल पर आए। सो और देन आई थिंक वी कैन गो ऑन टू फर्दर दिस थिंग। उसमें आप टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करिए जितना करना है, लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और फाइनली जाते जाते, टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन कि वो मॉन्सेंटो का ब्रांड लगा हुआ है तो वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जॉन डियर का ब्रांड लगा है तो वो टेक्नोलॉजी है। जो किसान टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है, वो भी तो टेक्नोलॉजी है, वो भी टेक्नोलॉजी है। तो लेट अस एप्रिशिएट दैट टेक्नोलॉजी रादर देन सेइंग कि नहीं ये तो कंपनी का ब्रांड नहीं होगा तो हम इसको मानते नहीं कि टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारी मानसिकता में है सर, हम कंपनी जो भी हमें दे देती है हम उसको पुश करते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन किसान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम मानते नहीं कि वो टेक्नोलॉजी है। एक उदाहरण एंड देन आई वाइंड अप। एक आप जानते हैं कॉटन में बहुत पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, तकरीबन 50% पेस्टिसाइड का उपयोग कॉटन में होता है। और कॉटन में एक कीड़ा है जिसने सबकी नाक कर रखी है, ठीक है, लेकिन वो कीड़ा जो है उसके लिए कंट्रोल के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नाउ इंटरेस्टिंगली जींद जिले में हरियाणा में
ब्रज जी जानते हैं, जींद जिले में एक मॉडल चल रहा है लोकल किसानों का, उसको कहते हैं कीट पाठशाला। कीट पाठशाला में महिला कीट पाठशाला उसका एक्चुअली नाम है। गांव की महिलाओं ने क्या क्या किया है, वो आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर और एक हाथ में कॉपी लेकर वो हर 2 दिन में अपने खेत का चक्कर लगाती है और उसमें आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है इंसेक्ट्स का, वो अच्छे कीड़े कितने बढ़ गए और नुकसानदायक कीड़े कितने बढ़ गए। हमें तो यही नहीं पता चलता कि कीड़ा तो कीड़ा, हम तो मानते हैं कि उसको नुकसानदायक ही है, हम फट स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे पास एक महिला आई, मैंने उसको पत्ता दिखाया, मैंने कहा कि भाई मैं भी अपनी साइंस भूल गया, तो मैंने उसको बताया कि देखिए ये तो पत्ता भरा पड़ा है, ये तो आपको स्प्रे करना चाहिए था। वो कहती है कि सर ये 65 कीड़े, उसे गिन लिए, कहती है 65 कीड़े हैं, दे आर द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी है, आपको हैरानगी होगी कि वो टेक्नोलॉजी 20 गांव में ऑपरेट करती है, वहां पर वो कोई केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते और उसके बावजूद भी कोई कीड़े का अटैक वहां नहीं होता। लेकिन जब भी हमने यूनिवर्सिटी से कहा है कि साहब इस टेक्नोलॉजी को लीजिए, तो प्रॉब्लम कहां आती है? ब्रांडिंग, कि इसके ऊपर किसी कंपनी की मोहर नहीं लगी है तो वो नहीं लेती यूनिवर्सिटी। लेकिन आप मानेंगे कि वो अगर महिलाएं इतना आपको एक लेसन देती हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, दैट्स अ टेक्नोलॉजी। लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट है कि जिसका जितना माल बिकेगा उतना ही उसकी सैलरी भी बढ़ती है जो उसको बेचता है, जो हम जानते ही हैं। सो एवरीवन इंटरेस्टेड टू सेल दैट प्रोडक्ट, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। लेकिन हम इसको नेचुरल जो सिस्टम्स हैं जो इतने बढ़िया तरीके से सोसाइटी में इवॉल्व किए हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और इंटरेस्टिंगली हाउ डू दे डिस्क्राइब दिस? वो कहते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, एक वेजिटेरियन इंसेक्ट होता है, एक नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट होता है। आपने कभी सुना नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट भी हो? आप तो सोचते हैं कि सारा ही नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन रियलिटी ये है, वो कहते हैं कि जो कीड़े हार्मफुल होते हैं वो वेजिटेरियन इंसेक्ट होते हैं, कि वो पत्तों पे और फूलों पे इन सब पे अटैक करते हैं, वही नुकसान करते हैं ना। जो नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट होते हैं वो जो इंसेक्ट उस पे अटैक कर रहे हैं उनको खाते हैं। सो लुक एट द क्लासिफिकेशन, वेजिटेरियन इंसेक्ट और नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट। इसमें क्या शर्म की बात है कि हम उसको ना लें और उसको ना आगे प्रमोट करें? जरूरी है कि हमें पेस्टिसाइड के ऊपर पेस्टिसाइड का कंजम्पशन जब से बीटी कॉटन आया है भारत में, तब से अभी तक जो पेस्टिसाइड कंजम्पशन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो पेस्टिसाइड पे है वो 37% पर हेक्टेयर बढ़ गया है हिंदुस्तान। We should get out of that and then promote these kinds of appropriate technologies. The point I am trying to make, sir, कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग ब्रांडिंग से हटकर हम उस तरीके से उपयोग करें कि जो हमारे लिए सबके लिए रेलेवेंट है, सेफ है, हेल्दी है, एनवायरनमेंट को बचाती है, जमीनों को बचाती है, क्लाइमेट को बचाती है, जो भी है इस तरीके के हम कर जाए। और वो कैसे काम हो सकता है? वो काम तब हो सकता है कि जो यंगर पीपल है ना, they take a not only note but they take a shot of this. मैं अंत में बताना चाहता हूँ आपको कि नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी एक बार, and I think this is more appropriate for younger children. उसने कहा था, the biggest tragedy of 21st century is that we have lost our anger. और एंगर का उनका कहना था, उन्होंने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट सेंटेंस था, when I say anger, I don't mean you go and plant a bomb. That is not anger. Anger is your ability to understand, to comprehend, then to take a meaning out of it, and then stand up and ask a question. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे सवाल नहीं पूछते, and I think that anger is missing. अगर आप अच्छे सवाल पूछेंगे, ठीक सवाल पूछेंगे, believe me, आपको ठीक जवाब भी मिलेगा। वो एंगर जो है सारी जनरेशन में, सोसाइटी में, ये तो मंडेला का सोचना था, and I completely agree with him, वो खत्म हो गया। और उसको बिल्डअप हमें करना है, which means your ability to digest, to comprehend, and then to stand up and ask a question. I think if you do that, believe me, आप एक नई लहर दुनिया में खड़ी कर दोगे बच्चों, कि जो दुनिया को सबक भी मिलेगा इससे कि हमें पब्लिक पॉलिसी जो है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। You are the people who can drive us to that. ये मत सोचिए कि मेरा काम है, ये प्रोफेसर साहब का काम है, वो आप सबका काम हो सकता है अगर आप ठीक तरीके से सवाल पूछो। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट लूज योर एंगर। थैंक यू वेरी मच।